آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی عکاسی ہے۔ آرمی چیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر ایک اہم ایٹمی طاقت اور خطے کا ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ بھارتی قیادت 8 دہائیوں بعد بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہ کر سکی۔ ہندوتوا ذہنیت خطے کو بارہا جنگوں اور بحرانوں کی طرف دھکیلتی رہی ہے۔ ایٹمی ہمسا ملک کو مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن اور جنگی جنون ہے۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں تحمل، بلوغت اور اسٹریٹجک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ بھارت خطے میں دہشت گردی اور عدم استحکام کا تاریخی ریکارڈ رکھتا ہے۔ دہلی کا جارحانہ رویہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی کا اظہار ہے۔ مارکہ حق کے دوران بھارتی عزائم اور کمزوریاں بے نقاب ہوئیں۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوششیں خطے سے باہر تک سنگین نتائج لا سکتی ہیں۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں وجود مٹانے کی نہیں بلکہ اسٹریٹجک بردباری کی زبان استعمال کرتی ہیں۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کا سرپرست اور ماورائے سرحد ٹارگٹ کلنگز کا مرتکب ہے۔ بھارتی قیادت جنوبی ایشیا کو ایسی جنگ کی طرف نہ دھکیلے جس کے نتائج پورے خطے کو تباہ کر دیں۔ بھارت پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کرے اور پرامن بقائے باہمی کے ساتھ رہنا سیکھ لے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ دہلی کا جو رویہ ہے وہ جارحانہ ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور انمنٹ ہے۔ پاکستان کو کوئی بھی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بھارتی آرمی چیف نے ایک بیان دیا ہے، ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے پاکستان کو ختم کرنے کی بات کی ہے، صفحہ ہستی سے مٹانے کی۔ ایک مرتبہ پھر پاکستان کو باتیں کی جا رہی ہیں تو اس پر افواج پاکستان کی جانب سے رد عمل دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں۔ نمائندہ خصوصی محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، بھارتی آرمی چیف کے بیان پر افواج پاکستان کی جانب سے کیا رد عمل دیا گیا، بتائیے گا؟ جی بالکل، جو حالیہ بیان ہے اس حوالے سے بڑا جو رد عمل آیا ہے پاک فوج کی جانب سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف نے ایک حالیہ انٹرویو میں جو اشتعال انگیز بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہے وہ جغرافیہ اور تاریخ کا حصہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں۔ ہندوتوا کے زیر قیادت بھارت میں پائے جانے والے وہم زدہ اور حقیقت سے عاری سوچ کے برعکس یہ بیان ہے اور مسلسل بد خواہی کے باوجود پاکستان پہلے سے زیادہ عالمی سطح پر ایک اہم ملک ہے۔ یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بیان دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ بھارتی قیادت 8 دہائیوں بعد بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہ کر سکی۔ ہندوتوا ذہنیت خطے کو بارہا جنگوں اور بحرانوں کی طرف دھکیلتی رہی ہے۔ اور یہ بھی اپنے اس جو بیان ہے اس میں یہ کہا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے کہ ایٹمی ہمسایہ ملک کو مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن اور جنگی جنون ہے۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں تحمل، بلوغت اور اسٹریٹجک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ بھارت خطے میں دہشت گردی اور عدم استحکام کا تاریخی ریکارڈ رکھتا ہے۔ دہلی کا جارحانہ رویہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی کا اظہار ہے۔ مارکہ حق کے دوران بھارتی عزائم اور کمزوریاں بے نقاب ہوئی ہیں۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش خطے سے باہر تک سنگین نتائج نہ لا سکتی ہے۔ اچھا عمران، یہ بتائے گا یہ جو ان کا بیان ہے بھارتی آرمی چیف کا، جو ان کو ہم نے شکست دی ہے مئی کے اندر، کیا یہ اس کی خفت مٹانے کی کوشش ہے، صرف ایک بیان بازی تک ہی ہے؟ جی بالکل، ان کی جو فوج ہے وہ اس وقت بالکل اس کی پالیسی کے اوپر چل رہی ہے۔ بنیادی طور پہ جو بی جے پی کا عام ونگ میں کنورٹ ہو چکی ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ مسلح افواج ہیں جس انداز سے وہ مندروں میں جا کے چڑھاوے چڑھا کر اور جس انداز سے وہ پوجا وغیرہ اور وہ ساری توہمات پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اس سے بالکل یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت وہ تینوں مسلح افواج جو ہے بھارت کی وہ جو بی جے پی کا عام ونگ بن چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2025 میں مئی میں جب پاکستان نے مارکہ حق آپریشن بنیان المنصوص کے دوران انڈیا کو جس انداز سے ذلت آمیز شکست دی، اس کا پوری دنیا معترف ہے کہ، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کہاں انڈیا کو امریکہ کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی کے اندر وہاں پہ قرار دیا جا رہا تھا کہ انڈین اوشن کے اندر جو ہے وہ چوکیدار بنے گا، اور کوارڈ کے اندر شامل کیا گیا، 2+2 میں شامل کیا گیا، اور یہ پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ امریکہ شاید جو ہے اس خطے کا چائنا کے خلاف جو ہے وہ کنٹرول اور تمام جو چوکیدار ہیں وہ شاید انڈیا کو بنانا چاہتا ہے۔ لیکن جو 2025 میں جنگ ہوئی اور جس انداز سے پاکستان کی مسلح افواج نے جواب دیا انڈیا کو، اور جس انداز سے دھول چٹائی اور جو کچھ انڈینز کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد پوری دنیا کا یہ وہم دور ہو گیا اور یہ سامنے بات آئی کہ انڈین
दावे सिर्फ खोखले हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस की ना कैपेसिटी है ना कैपेबिलिटीज है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ भी लड़ सके। और पाकिस्तान की जिन सलाहियतों ने का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने उस जंग के दौरान, वो किसी भी जदीद तरीन जंगी स्ट्रेटजी का शानदार मुजाहरा था, जिसको अब पूरी दुनिया केस स्टडी के तौर पे ले रही है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ऐसे इमरान, जिस तरह आप बता रहे थे कि वहाँ पर पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दी है, तो इस तरह इस जंग के बाद जो है इंडिया को सफारती मैदान में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, उसका इमेज डैमेज हुआ है, तो उसको वो बहाल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से अब पाकिस्तान को दोबारा से धमकियाँ दी जा रही हैं। पहले भी इस तरह की धमकियाँ दी जाती रहीं, फिर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किए गए, फिर पाकिस्तान पर इसको मुसलत किया गया जंग को। जब हमने उसको जवाब दिया, इंडिया को जब फेंटा पड़ा, तो फिर मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया है। तो आपको नहीं लगता कि अब आलमी बिरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए, दोबारा इस तरह के बयानात जारी किए जा रहे हैं वहाँ से? देखें, बिल्कुल आर्मी बिरादरी को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि जिस अंदाज से वहाँ से ये धमकियां दी जा रही हैं, इस बात का अंदाजा शायद जो है वो भारतीय आर्मी चीफ को भी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, ना उनको अपनी शॉर्ट कमेंट पूरी कर पा रहे हैं। और दूसरा, ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग के दौरान जिस अंदाज से पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क के तौर पे जो है वो सामने आया और जिस अंदाज से रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए बिल्कुल, हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इंडिया को शिकस्त दी, उसके बावजूद इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद इमरान हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बैरिस्टर गौहर ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन पर तहरीक इंसाफ से इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के रजिस्ट्रेशन बिलाजवाज़ मुस्तरद की गई है। पार्टी ने नवंबर 2023 में तमाम दस्तावेज़ात जमा करा दी थी, लेकिन दरख्वास्त 30 मई तक ज़ेर इल्तवा रखी गई। दीगर सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मंजूर कर ली गई है, जबकि तहरीक इंसाफ को मसावी मौके नहीं दिए जा रहे। बैरिस्टर गौहर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में PTI के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। ज़िलहज के चांद देखने के लिए मरकज़ी रोहियत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक रोहियत हिलाल कमेटी का इजलास महकमा मौसमियात कराची में होगा। आज ज़िलहज का चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा बरोज़ बुध 27 मई को होगी। अगर चांद नजर नहीं आया तो ईद उल अज़हा 28 मई बरोज़ जुमरात को मनाई जाएगी। दूसरी जानिब सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने भी आज 30 ज़िलक़दा की शाम को ज़िलहज का चांद देखने की अपील कर दी है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी शख्स को ज़िलहज का चांद नजर आए तो अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाए। वफाकी वज़ीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिन मसाइल पर 28वीं तरमीम आ सकती है वो बुनियादी नौयत की ही होंगी। अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक इसमें कोई शक नहीं है। आईनी अहदों से मुतल्लिक कुछ लोग हैं जो सदारती निज़ाम को बेहतर समझते हैं, लेकिन अक्सरियत क्लास इस बात पर इतफाक़ करती है कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमसे नाराज़ नहीं। बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कहा है कि उनके बगैर तरमीम नहीं हो सकती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 27वीं तरमीम हो चुकी है, अब जो भी तरमीम होगी वो 28वीं होगी, इस पर तो कोई बहस नहीं है। इंतज़ार भी है कि 28वीं तरमीम का ही है। अलबत्ता जिन मसाइल पर तरमीम आ सकती है वो बुनियादी नौयत के ही होंगे। ये ज़रूर मुमकिन है कि मैं उससे मुतल्लिक जिस तरह से सोच रहा हूँ कोई दूसरा नहीं सोच रहा हो, इसलिए इस बात पर बात होती रहती है। नफसी, आबादी, पानी की तरसील के मसाइल और कई मामला ज़ेर गौर हैं और इन पर मुख्तलिफ ज़ावियों से गुफ्तगू होती रहती है। लियाकतपुर में स्मार्ट लॉकडाउन के बाइस ताजर बिरादरी शदीद परेशान है। गर्मी की शिद्दत और कारोबारी औकात में कमी ने खरीदारों को बाजारों से दूर कर दिया है। ताजरों का कहना है कि शाम के वक्त कारोबार चमकने के बजाय दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, जिससे उनके माशी हालात ख़राब हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सैयद आमिर शाह से। मुल्क भर की तरह लियाकतपुर की भी ताजर जो है वो लॉकडाउन के हवाले से परेशान है। लॉकडाउन के हवाले से जो ताजर बिरादरी है वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त मेरे साथ अंजुमन ताजरान तहसील लियाकतपुर के जो सिटी सदर हैं हाजी मोहम्मद जामीन साहब, वो भी ताजरों के साथ हमरा मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो स्मार्ट लॉकडाउन जो है इसके हवाले से क्या कहेंगे। अब हमारी ईद उल अज़हा का त्यौहार आ रहा है और अब बाज़ारों की ये हालत है कि हमारे इलाके में 45, 46, 47 सेंटीग्रेड तक गर्मी पड़ती है। 4 घंटे मुसलसल 1 बजे से लग के 5 बजे तक कोई दुकानदारी नहीं होती। ईद की आमद है और दुकानदार जो है वो हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, तो ईद तक जो है ना इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए ताकि जो गरीब लोग हैं, ताजर हैं, अपनी रोज़ी रोटी करें। जी, ताजरों का कहना है कि भी हुकूमत जो है ईद के दिनों तक जो है, ईद उल अज़हा तक जो है ये लॉकडाउन ख़त्म करे और इसके बाद जो है अगर हुकूमत की कोई ऐसी मजबूरियाँ हैं, ऐसी कोई पॉलिसी है तो इस पर अमल दरामद किया जाए। जी।
पिशावर से आपको खबर दें, जहां सूबाई काबीना के नए अरकान ने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने उनसे हल्फ लिया है। सूबाई काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया है, जिसमें नए मुशीर और कुछ वजीर हैं, उनका इजाफा किया गया है। सूबाई काबीना को इससे पहले जो वजीर आला हैं, उन्होंने समरी भेजी थी गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी को। उन्होंने ये समरी मंजूर कर ली थी और आज नई काबीना के अरकान से हल्फ ले लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। टिब्बा सुल्तानपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो गया। अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और गरीब मजदूर तबके के अफराद अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं शेख एहसन शफी से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। जो अद्वियात की कीमतें हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो ऐसे ही अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा होता है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जान। जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उसी तरह हर चीज़ में महंगाई देखने को मिलती है। ये जब पेट्रोल की कीमत कम थी तो मेरी एक हफ्ते की मेडिसिन 400 रुपये की आती थी। जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो वही एक हफ्ते की मेडिसिन मेरी 1200 रुपये की आ रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात को सुना, इनका यही कहना था। अब जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो मेरे हफ्ते की जो मेडिसिन है वो 1200 तक पहुँच गई है। इन्होंने हुकूमत से गुजारिश की है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और जो अद्वियात की कीमतें हैं इनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। जी। थाना कोट राधा किशन की हदूद में एक दुकान में मुसलसल 3 बार चोरी होने के बावजूद शहरी को इंसाफ न मिल सका। मुलजिमान नामजद होने के बावजूद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला से इंसाफ की अपील कर दी है। मज़ीद जानते हैं राना महबूब से। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ कोट राधा किशन में, जहाँ पर चोरी और डकैतियों की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जिसकी 3 दफ़ा दुकान लुटने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिला। जी मेरी 3 दफ़ा दुकान चोरी हो गई है तो मैं यानी कि भाई FIR कराई है। ऐसे कितने अरसे बाद आपकी दुकान में चोरी हुई है? तकरीबन साल बाद हुई है, फिर 1 महीने बाद हुई है। 3 चोरियां हुई हैं। भाई हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं और हमें इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल, इन लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने अपने भैंसें जानवर बेच कर दुकान में डाले थे लेकिन दुकान में चोरी हो गई। पुलिस है वो हमारी बात नहीं सुन रही। तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए मालियत की चोरी हुई है और हमें इंसाफ दिलाया जाए। जी। लोधरा की तहसील के रोड पक्का में 3 रोज़ा चीफ मिनिस्टर स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है, जहां मरीजों के स्क्रीनिंग टेस्ट किए गए हैं और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर ज़ीशान शहजाद ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि 3 रोज़ा कैंप के दौरान 2000 से ज़ायद मर्द, ख़ातीन और बच्चों का चेकअप किया गया है, जबकि मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई हैं। टारगेट से ज़ायद मरीजों का मुआयना करके THQ अस्पताल के रोड पक्का पहले नंबर पर रहा है। मज़ीद जानते हैं तारिक चौधरी से। जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं लोधरा की तहसील के रोड पक्का में मौजूद हूँ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब की हदायत पर जो है यहाँ पर एक स्पेशल स्क्रीनिंग जो है वो कैंप लगाया गया था, जिसमें मरीजों को जो है मुफ्त अद्वियात और उनकी स्क्रीनिंग जो की गई है। आज कैंप का जो आखिरी दिन था और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर जो MS हैं यहाँ के डॉक्टर ज़ीशान शहजाद साहब वो मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि 3 रोज़ा कैंप था CM साहबा की खसूसी हिदायत पे और सेक्रेटरी हेल्थ है हमारी नादिया साकिब साहबा, उनकी खसूसी हिदायत पे 3 रोज़ा कैंप का इनाकात किया था और इसमें बेसिकली ये स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप था। तो स्क्रीनिंग कैंप में मतलब ये है कि आप लोगों के लिए हमने एक स्क्रीनिंग का अमल शुरू किया था। उसमें उनके जो रूटीन के जो चेकअप थे उसमें हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, TB, मलेरिया और अल्ट्रासाउंड, इन सब की सहूलत मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिनों में 2000 से ज़्यादा मरीज़ों को हमने चेक किया है। उनको मज़ीद मतलब उनके अल्ट्रासाउंड भी किए हैं, उनके रिपोर्ट्स भी किए हैं और उनको मेडिसिन भी दी हैं। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपने सुना है इस वक्त एक छत के नीचे जो है लोगों को इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं और इस वक्त जो 2000 से ज़ायद मरीजों को जो है इन्होंने स्क्रीनिंग भी की है, उनके टेस्ट किए हैं और उनका इलाज मुआवजा किया है। जी, अब खबरें शामिल करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। डेरा इस्माइल खान में आटे की कीमतों में इजाफा गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए नई परेशानी बन गया है। शहरी 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए भी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ और कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल माजिद से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा इस्माइल खान मुल्तान रोड। डेरा इस्माइल खान में जो आटे की कीमतें हैं जो कि पहले 2200 रुपये थी वो अब
2600 से 2700 तक पहुंच चुकी हैं। अवाम है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है, बिलखसूस जो योमी उजरत पे काम करने वाला तबका है वो 2700 रुपये आटे ख़रीदने में उनको काफ़ी दुश्वारी है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो आटे की कीमतों के हवाले से क्या इज़हार ख्याल करते हैं। जी मैं ABN न्यूज़ और रसाब न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे जो मसले मसाइल होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं। जी बिल्कुल, अभी मैं आटा ख़रीदने आया था। जो चीज़ हमें 2200 के पहले ये आटा की तेली जो मिलती थी, आज वो 2700 से 2800 तक पहुँच गई है। मैं मौजूदा वक्त के जो हमारे सूबाई हुकूमत है उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आवाम को रिलीफ दे। पहले से हर चीज़ इतनी महंगी है, पेट्रोल और डीज़ल के काफ़ी महंगे हो चुके हैं, गरीब लोग का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। पे आटा ख़रीदने आऊँ, डेली दिहाड़ीदार हैं, तो आटे का जो थैला हमें 2200 का मिलता था, आज वही थैला हमें 2800 रुपये का मिल रहा है। सरकारी आटा मुहैया करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। अवाम का कहना है कि सूबाई हुकूमत आटे की कीमतों पे कमी के लिए फौरी इक़दामात करे, क्योंकि जो गरीब तबका है वो आटे की वजह से जो है काफ़ी मुतासर हो रहा है, उसकी कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह चित्राल के सियासी और समाजी क़यादत ने भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर पाक फ़ौज और पाक फ़ज़ाइया की कुर्बानियों को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद देखते हैं करीमुल्लाह की ये रिपोर्ट। चित्राल में भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की मुनासिबत से एक बावकार तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब का इनेकाद मारका हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की पहली बरसी के मौके पर किया गया, जिसमें हुक्मरान मुस्लिम लीग नून के अलावा दिगर सियासी जमातों के रहनुमाओं, कारकुनान, समाजी और अवामी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। पिछले साल 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर साबित कर दिया कि 1965 में भी हम लोग जीत गए थे। चित्राली पाकिस्तान से और पाक अफवाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि आज चित्राल के जिस गांव में जाओ, जिस कब्रिस्तान में जाओ, एक शहीद का ज़ियारत वहाँ पे ज़रूर मौजूद होगा। तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फ़ौज और पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुल्की सलामती, कौमी यकजहती और दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा को भी भरपूर अंदाज में याद किया गया। करीम उल्ला, ABN न्यूज़, चित्राल। नौशहरा और फिरोज में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। दिहाड़ीदार मजदूर तबका शदीद परेशान है। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर अहमद से। नज़ीर, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ नौशहरा फिरोज के इलाके में, जहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई में आवाम परेशान दिखाई दे रही है। मजदूर, रेडीदार, तमाम जो है गरीब मजदूर परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि महंगाई के ऊपर फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। गरीब आदमी बेचारा पहले ही परेशान था, अब साथ में सफ़ेद पोश तबका भी परेशान लग रहा है। और लेकिन यहाँ पर पेट्रोल अभी भी 415 रुपये लीटर में मिल रहा है, जो कि हमारे साथ, हमारी गरीब आवाम के साथ सरासर ज़्यादती है और जुल्म है। जी, शहरी का आपने मौक़िफ़ सुना, उनका यही मुतालबा है जल्द से जल्द जो है ये दुकानदारों पर जो होशरबाज दिखाई दे रहा है, इन पर जो है कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब मजदूर और दिहाड़ीदार तबका 3 वक्त का अपना सामान लेके, साजो सामान लेके अपना गुजर बसर कर सके। जी।